Okay, dear students, we have been discussing polymerization reactions. Today is third lecture in the series of polymerization reactions. We have already discussed about polymerization reactions, that what are polymerization reactions. After that, you have seen that polymerization reactions, they are of different types. That means there are various types of reactions that can take place in polymerization reaction. But first of all, we have discussed condensation reactions, that how condensation reactions yield a variety of polymers by simple reaction between two monomers and elimination of a neutral molecule, which can be water, which can be any molecule, any small molecule. So polymerization reactions, if we see as per the mechanism of polymerization reaction, we saw that there are chain polymerization reactions and then there are step growth polymerization. So first we started discussing step growth polymerization. In that direction, we saw that how step growth polymerizations they proceed, and we discussed its example also, which was bakelite, and many other reaction formations of polyamides, polyurethanes, esters, polyesters. They all take place through step growth polymerization. So in the series of this step growth polymerization, we have another type of polymerization. The mechanism of this polymerization is also step growth polymerization, but it involves a different method, a new method. This particular polymerization is known as interfacial polymerization. So today we are going to be discussing interfacial polymerization. So kind of its name gives away that what type of polymerization this is, but still I will explain in detail what is interfacial polymerization. So interfacial polymerization क्या है? पॉलीमराइजेशन जो है इट टेक्स प्लेस इन अ रिएक्शन मीडियम. एक आपके पास रिएक्शन मीडियम है, उसमें आपके मोनोमर्स हैं. मोस्ट लाइकली आपके पास जो हमारी रिएक्शंस होती हैं दे टेक प्लेस इन अ सॉल्वेंट. ऑर्गेनिक रिएक्शंस मोस्ट ऑफ द टाइम दे टेक प्लेस इन अ सॉल्वेंट. एक सॉल्वेंट है जिसमें आपके पास आपके मोनोमर्स जो हैं या स्टार्टिंग मटेरियल्स जो हैं वो डिसॉल्व्ड है. उसी मीडियम में आपके स्टार्टिंग मटेरियल्स दे कम क्लोजर एंड दे कोलाइड विद ईच अदर एंड दे रिएक्ट. ठीक है. ऐसी पॉलीमराइजेशन जो बिल्कुल होमोजेनस एटमॉस्फेयर में होती है उनको हम होमोजेनस पॉलीमराइजेशन कहते हैं, जो हम डिस्कस भी करेंगे. लेकिन आज हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन डिस्कस करने वाले हैं जिसमें जो हमारा मीडियम है वो होमोजेनस नहीं होता है. तो जो इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन है दे आर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. दैट मीन्स द मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन इंडीड इज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. But इसमें क्या होता है that in these type of polymerization that reacting monomers are immiscible. And polymerization takes place at interface. इंटरफेस का मतलब समझते हैं ना आप. इंटरफेस का मतलब होता है एक ऐसी meeting point of two different phases. These phases can be two liquids, it can be a solid and a liquid, it can be two solids. Between two different phases के बीच का जो meeting point होता है उसको हम बोलते हैं interface. अब जो इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन है इसमें क्या होता है, जो मोनोमर, जो दो मोनोमर सपोज ए प्लस बी जो रिएक्ट कर रहे हैं ये इमिसिबल फेजेस में है. ये जिन फेजेस में है उनमें ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं है. तो फिर क्या होता है कि ये जो दो फेजेस जहां पर एक दूसरे से मिलते हैं उन फेजेस का जो इंटरफेस है वहां पर ये पॉलीमराइजेशन होती है. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन. सो दिस पर्टिकुलर polymerization it takes place at the interface between two liquid phases, and these two liquid phases take place at the interface
of two liquid phases, each containing one reactant. हर एक फेज में क्या होता है, एक एक रिएक्टेंट होता है। इसको हम बोलते हैं इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन। तो इसमें सबसे पहली बात यह कि इसमें वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स हम इसमें फॉर्म करते हैं यूजिंग दिस मैकेनिज्म। very high molecular weight polymers are formed using this mechanism. और इसकी सबसे अच्छी बात है कि this particular reaction it takes place at room temperature. At room temperature this polymerization takes place. तो ये हमारे पास एक एडिट इसका एक बेनिफिट है, एक एडवांटेज है। तो इसमें हमारे पास बहुत से टाइप ऑफ पॉलीमर्स जो हैं, जैसे कि पॉलीअमाइड। Polyamides are those polymers which contain multiple amide linkages. Polyurethates, polyesters, all these are prepared using interfacial polymerization. ठीक है, जैसे कि मैं आपके साथ एक रिएक्शन डिस्कस करूंगी। सपोज हमारा एक रिएक्टेंट जो है दिस इज अमीन, ठीक है, इट्स अ डायमीन। और हमारा दूसरा जो मोनोमर है दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दोनों जो हैं ये रिएक्शंस जो है ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से हो रही हैं। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन आपके पास क्या होगी, रिएक्शन आपके पास कुछ ऐसी होगी। RNH यहाँ से 2 है, एक ही साइड पे रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली कार्बोनिल कार्बन पे ये करेगा अटैक एंड दिस विल गो अवे, यहाँ से इसका प्रोटॉन निकलेगा। तो वी गेट अ अमाइड लिंकेज, ठीक है। ये मोनोमर से क्या बन गया, एक डाइमर, ओके। सो ये इसमें ये अमाइड लिंकेज है। तो इसी तरीके से मल्टीपल अमीन्स एंड एसिड्स जो हैं दे विल रिएक्ट टू फॉर्म अमाइड्स। तो इसमें जो है ये फर्दर एक और अमीन के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। और ये साइड जो है अनदर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकती है एंड सो ऑन। ये आपको अब पता है कि जो मोनोमर्स हैं दे कैन रिएक्ट लाइक दिस, ठीक है। बोथ द टर्मिनल्स दे आर फुली केपेबल ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू रिएक्शन। So this is how basically polymerizations take place. Step growth polymerization in particular के पहले बहुत सारी मोनोमर्स आपस में रिएक्ट करके छोटी छोटी चेन्स बनाते हैं। चेन्स containing 4 monomers, 5 monomers, 10 monomers, 12 monomers, 2 monomers, and then these chains they come together to form a larger molecule, a macromolecule. तो सिमिलर पॉलीअमाइड्स जो है वो किसी भी तरीके से फॉर्म हो सकते हैं, या आप ग्लाइकोल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शन करेंगे तो आपके पास पॉलीएस्टर्स बनेंगे। ये मैं आपको एग्जांपल्स बता रही हूँ कि कौन से वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं दे फॉर्म सच टाइप ऑफ अंडरगो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे इसमें एस्टर लिंकेज है, सो multiple ester linkages it will produce a polyester. So there can be a reaction of amine and ethyl and the chloride also. आप ये सारी एग्जांपल्स जो हैं यू कैन राइट डाउन, बिकॉज ये सारी रिएक्शंस जो हैं ये अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। C double bond OCl, C double bond OCl, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये मैंने अटैक यहाँ से दिखाया है, नॉर्मली अटैक टेक्स प्लेस फ्रॉम बैक साइड। तो आपके पास क्या जाता है CH2NH, इसमें भी हमारे पास अमाइड लिंकेज बन गया, और यहाँ पर एंड सो ऑन जो भी यहाँ है और यहाँ भी जो भी है।
इसमें भी हमारे पास क्या बन गया, एमाइड लिंकेज। तो ये सारी हमारे पास क्या फॉलो करती हैं, इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन। अब इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन में होता क्या है, मैंने आपसे अभी कहा कि इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, हमारे पास दो मोनोमर्स हैं और दोनों मोनोमर्स जो है वो डिफरेंट फेजेस में डिसॉल्व हैं, ठीक है। तो ये सपोज जो दो फेजेस हमारे पास हैं वो कौन कौन से फेजेस हो सकते हैं, एक हमारे पास आ जाएगी ऑर्गेनिक लेयर, दूसरा हमारे पास आ जाएगा एक्वस लेयर, ठीक है। ये दो लेयर्स हैं हमारे पास, ऑर्गेनिक लेयर एंड एक्वस लेयर। अब क्या है हमारे पास, हम एक कंपोनेंट ऑर्गेनिक लेयर में डिसॉल्व होगा, दूसरा कंपोनेंट एक्वस लेयर में होगा। सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ कौन सी, अमीन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो ये सपोज मेरे पास एक अमीन है और ये मेरे पास एक सॉरी, ये मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। ये दोनों मोनोमर्स हैं, ठीक है। And as you know that carboxylic acids, they are soluble in aqueous medium, and amines, they are easily soluble in organic medium, partially soluble है in aqueous. Amines जो है they are soluble in water also, but जैसे जैसे इनका एलिफेटिक पोर्शन बढ़ता जाता है इनकी solubility डिक्रीज होती जाती है, और ज्यादा soluble जो है ये आपकी ऑर्गेनिक मीडियम में रहती है। इसमें हम क्या करते हैं, मोनोमर को उस फेज में डिसॉल्व करते हैं जिस फेज में उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। दैट मीन्स अमीन्स को इस केस में मैं एक्वस लेयर में डिसॉल्व करूंगी और एसिड को इस केस में मैं ऑर्गेनिक लेयर में डिसॉल्व करूंगी। तो क्या हो जाएगा कि इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होगी। सपोज ये रेड जो है हमारे पास, ये क्या है, अमीन है, ये पूरी तरीके से इस एक्वस लेयर में डिसॉल्व नहीं होगी, और ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक लेयर में पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होगा, बल्कि एक इमल्शन टाइप जो है वो क्या होगा, बन जाएगा, ठीक है। कंप्लीट सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, और ये थोड़ा सा इमल्शन टाइप होगा, कंप्लीटली एब्सोल्युटली ट्रू सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अब जब ये क्या होते हैं, ये इसमें अमीन में डिसॉल्व है, अमीन एक्वस लेयर में डिसॉल्व है और एसिड जो है ऑर्गेनिक लेयर में डिसॉल्व है, तो क्या होगा कि जब हम इन दोनों लेयर्स को एक साथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये जो इसमें कंपोनेंट्स हैं इनके, जैसे ये जो अमीन है, इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ऑर्गेनिक लेयर बिकॉज इट इज मोर soluble in organic layer, and the carboxylic acid, it will start moving towards the aqueous layer. So what do? These molecules, they meet at the interface. ये molecules क्या करते हैं, they meet at the interface and their reaction takes place at this interface. Polymerization, it takes place at this interface because both these components, which are not very properly dissolved in their respective mediums, so what they do, they try to move to the other side of the phase, and what happens, they come across monomer at this particular point, and what do, that they undergo polymerization at this place, and this is known as interfacial polymerization. अब आप देखिए जो इसमें पॉलीमर बन जाता है ना, it will not, most likely it will not be soluble in any of these layers. तो ये क्या होगा, the polymer is drawn out in the form of sheet. Polymer formed can be pulled off as continuous film. As it is formed, इसको क्या किया था, एक फिल्म के तौर पे जो है, it can be pulled off using, वो मैकेनिज्म होता होगा वहां पर, एक जो इसका सिंथेसिस का वो इक्विपमेंट होता होगा. So this is how interfacial polymerization. The basic concept in this type of polymerization is that there are two type of phases, and what happens that once these monomers they come to the interface,
what happens that they react immediately at the interface, and it leads to the removal of a neutral molecule. It can be water or it can be HCl in case of chlorides, and whatever it is. So what happens eventually that they start forming. First of all, it's a form example of step growth polymerization. So first of all, they will be forming smaller units. That after a certain point of time, the multiple chains, they will be joining each other, and they will be forming high molecular weight polymers. So it's a very good method of polymerization, and it is known as interfacial polymerization. So this is all about interfacial polymerization.